Okay, hello everyone. So we start with the first exercise of class 9th Gananjali, and this exercise is regarding orienting yourself. Okay, so use of coordinates, orienting yourself. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. It shows Rayan's room with points O, A, B, C marking its corner. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. तो यहाँ पर हम देखते हैं. ठीक है, ये पॉइंट O हमारा ओरिजिन है और ये अपना हमारा क्या है, उनका एक लेआउट दिया हुआ है. ठीक है, पॉइंट ए इसका कोऑर्डिनेट 12,0 है. पॉइंट बी दिस इज 12,10. पॉइंट सी 0,10. Now referring to this figure, answer the following questions. If D1R1 represents the door to Rayan's room, how far is the door from the left wall? This is y-axis. Okay, this is y-axis. This is y-axis. So how far is the door from the left wall? Door हमारा यहाँ से start हो रहा है D1R1. तो door कितना यूनिट हमारा अवे है? This is 8 units. How far is the door from the x-axis? x-axis से कितना दूर है? x-axis से 8 यूनिट है. सॉरी, y-axis से 8 यूनिट है. x-axis से कितना दूर है? x-axis से 0 यूनिट, बिकॉज x-axis पे ही है ना. इट इज लोकेटेड ऑन x-axis. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? D1 क्योंकि x-axis पे है तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,0. Now moving to the third part, it says if R1 is a point 11.5, 0, ये हमें R1 के coordinates दिए हुए हैं. How wide is the door? So width of the door. Now D1 R1 is the width of the door. ये 11.5 है. The width of the door is going to be 3.5 unit. Okay. Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? सो अब इसमें ये 8 यूनिट है, ये 11.5 है, इसका 3.5 है. अगर यहाँ पर आप बेड को देखें तो बेड की जो विड्थ है ये यहाँ से अगर आप ले लें, लेट इट बी 0.5, ये हमारी 7 है, तो बेड की जो लेंथ है वो 6.5 यूनिट. ठीक है, और डोर की हमारी 3.5 है. तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ 3.5 द विड्थ ऑफ द डोर इज this is very comfortable. So if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? Yes, very much. So he can easily enter this because इतना बड़ा तो हमारा wheelchair नहीं होगा. Now next is if B1 0, the coordinates of B1. Now where is point B1? This is point B1. ये point B1 है. इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 0,1.5. ये है 0,1.5 इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ B1 and B2 is 0,4. ये 0,4. So it represents the ends of a bathroom door. Is a bathroom door narrower or wider than the room door? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हमारा है 3.5 यूनिट, सॉरी 2.5 यूनिट. So 2.5 is lesser than the 3.5. So obviously the bathroom door is narrower. Okay, it is narrower than the room door. So this is how we'll do first question. Now next is what are the standard widths of the room door? Look around your home. Are the doors in your school suitable for people in wheelchairs? So this can be checked by actual measurement. आप scale से कर सकते हो, by hand palm you can check. And ideally speaking it should be checked with the scale जिसका हमें डायमेंशन दिया हुआ है. फीट में भी है हमारा, सेंटीमीटर में भी रहता है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं. ये हमें कार्टेशियन प्लेन है. कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा एक्स एक्सिस है. ओके, नाउ द एक्सिस डिवाइड्स द होल कार्टेशियन प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. सो दोनों कोऑर्डिनेट्स के जो साइन नोटेशन है वो हमारा प्लस प्लस रहेगा. यहाँ पे अगर हम आएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. इस केस में दोनों ही नेगेटिव. यू ऑल कैन सी दैट दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओके, सो दिस इज नेगेटिव and this is negative y axis. Clear? So
Same way, now if we take on the fourth quadrant, this is positive, this is negative. Okay, so this is how we will do. Okay, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वो 0 रहेगा. इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. का मतलब है कि क्या सेम एक्सपेक्टेशन हमारा एक्स एक्सिस के लिए भी है. यस, इट मीन्स व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज ऑल्सो 0. नेक्स्ट है, डज दिस पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट एक्स कॉमा वाई, जस्टिफाई योर आंसर. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि अगर मैं कोई कह रही हूँ 3,2 कोई पॉइंट है, क्या वो सेम है 2,3 को. तो इसको ग्राफ में समझते हैं. जैसे 3,2 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा. 3,2 है, इसको हमने ए ले लिया एंड लेट्स से दिस इज ए डैश. तो क्या 3,2 का जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है 2,3. सो वी विल से नो, दे आर नॉट सेम. नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, एंड दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई. यस, दैट इज ट्रू. सो दिस इज okay. So now we'll take exercise 1.2. 1.2 में हमारे क्वेश्चन आ रहा है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन. है ना, ये अगर आप देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस. एंड मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे -6 है, तो अगर इसको और आगे कर लें तो यहाँ पे हमारा -7 आ जाएगा. है ना, 13,0 मीन्स इसका एक और आगे करें तो अगला जो पॉइंट है वो 13,0. एंड फ्रॉम 0, -15, 0, -15 मीन्स that is x y coordinate, sorry, y axis. 0, -15 is somewhere down below to 0, 12. 10 तक तो हमें लोकेट कर रखा है, 0, 12. Answer the given question. First is place Rayan's rectangular study table with 3 of its feet, 8,9, 11,9 and 11,7. So 8,9. This is 8, 8,9 है ना, 9 यहाँ पे आएगा. तो ये है हमारा 8,9. ठीक है, हम टेबल प्लेस कर रहे हैं और उसका सेकेंड जो फुट है ना, जो अलाइनमेंट पे अगर हम इसको देखें, अगला जो है वो आ रहा है हमारा 11,9. यहाँ पर टेबल लगाया जा रहा है. और उसके बाद थर्ड है 11,7. 11, दिस इज 11, यहाँ पे आ जाएगा. ये 8 है, दिस इज 11,7. तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये टेबल है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, फोर्थ यहाँ होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है. ये हो जाएगा 8,7. है ना, समवेयर द टेबल इज बीइंग प्लेस्ड. टेबल लगा दिया. ठीक है, where will the fourth foot of the table be? Fourth foot will be 8,7. Is this a good spot for the table? Okay, yes, because यहाँ पे वार्डरोब है, यहाँ पे डोर आ रहा है, तो ऑब्वियसली टेबल को हम यहाँ ही प्लेस कर सकते हैं और बीच में बेड और टेबल के बीच में डिस्टेंस है. कैन हैव द स्पेस ऑल्सो. ठीक है. What is the width of the table? Width of the table is what? So width of the table is width of table. Width of the table हमारी हो जाएगी, this is length of the table is 3 unit, 11 minus 8, 3 unit. और width हमारी हो जाएगी 9 minus 7, that is 2. ये width. Now next is can you make out the height of the table? Now height of the table क्या होगी, तो height of the table is not determined. It cannot be determined because it's nothing of that sort has been given. There's no information regarding the height of the table. Okay. Now question number second. So question number second, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens it into the bedroom, where will it hit the wardrobe? अब बाथरूम डोर का हमें यहाँ B1 पे है बाथरूम डोर. देयर इज वी हैव, यहाँ पे है बाथरूम डोर, है ना.
तो ये जो हमारा पुराना क्वेश्चन में था वो 1.5 था, 0,1.5 जो हमने किया था। तो अगर ये बेडरूम में खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है ये बाथरूम डोर, B1 में था, और इसका था बाथरूम डोर का, अगर हम देखें बाथरूम डोर का था B1 एंड B2 0,4 एंड 0,1.5। तो उसकी जो लेंथ थी वो 2.5 यूनिट थी। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो बेडरूम में खुलता है तो यहाँ पे 2.5 है ना, तो बेड ये 3 यूनिट पे वार्डरोब रखी हुई है, तो क्या वो विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो इसमें क्या है, बाथरूम डोर की जो विड्थ है ना, बाथरूम डोर की विड्थ है वो हमारा था 0,1.5 एंड 0,4। तो उसका जो विड्थ आ रही है हमारी आ रही है 2.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, तो ये इस क्वार्टर को हिट नहीं करेगा। तो वाइडर में अगर इसको वाइडर किया जाए है ना, तो ये जो है इट इज गोइंग टू हिट द वाटर, मतलब यहाँ पर जो है इसके 2.5 है, तो यहाँ हिट नहीं हो रहा है, इट शुड नॉट बी मेड वाइडर, है ना, इसकी विड्थ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन।